Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in today's lecture, and I hope all the previous lectures have been watched by you. Before moving towards our today's lecture, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. In Introduction to Computer Science, MS Office is the part of syllabus, and we will learn the few packages of MS Office in our coming videos. As we know, MS Office is application software whose various versions have come in the market, and these are Office 97, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, and Office 2016. In this series of videos, we will work on Office 2007, and I assure you, if you learn Office 2007 very well, then you will be able to work on any version of MS Office as well. MS Office is complete package which consists of the following applications. These are MS Clip Organizer, MS Office Access, MS Office Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS OneNote, and MS Publisher. Our focus will be on MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint, and we will take start from MS Word. MS Word is a word processing software that allows us to create simple as well as complex documents very easily, such as assignments, letters, and reports. Furthermore, we can do a lot of things in MS Word which will be experienced in coming videos. So let's see how to launch MS Word application. There are two methods which can be used to open MS Word application. The first one is to write in this box WinWord and press enter. A MS Word application will be opened. If you are using different windows, different operating system where you cannot find this text box, then press Windows R. After pressing Windows R, this box will come. Write here WinWord and press OK. MS Word application will be opened. The second method is to go to Start menu and find here MS Office. In the MS Office, you will see MS Word 2007. Here, click on it. MS Word will be open. So these are the two methods which can be used to launch MS Word application. You can see the layout of MS Word in your screen. It consists of different parts. Number one, Office button. This area is called Office button, and it contains most commonly used features such as New, Open, Save, Save As, and other options as well, which we will study later on. This area is called Quick Access Bar. It contains most frequently used commands. ये एरिया क्विक एक्सेस बार कहलाता है और इसमें हम वो कमांड्स को रखते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही हों, और हम इस एरिया में मुख्तलिफ कमांड्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे इस एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जिस कमांड को मैं इनेबल करना चाहता हूँ उसे क्लिक करके मैं क्विक एक्सेस बार में ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस न्यू कमांड को क्विक एक्सेस बार में लाना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास न्यू की कमांड क्विक एक्सेस बार में आ जाएगी और मैं इस कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकता हूं। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसी कमांड क्विक एक्सेस बार में ऐड करना चाहता हूं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं, तो इसके लिए मुझे मोर कमांड्स में जाना होगा और इस लिस्ट में कमांड को सिलेक्ट करना होगा ताकि मैं उसे भी क्विक एक्सेस बार में रख सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि ये कमांड भी क्विक एक्सेस बार में हो, तो इसे मैं पहले ऐड करवाऊंगा। ऐड करवाने के बाद मैं इसे ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखें आप, यहाँ एक न्यू कमांड ऐड हो चुकी है ड्रॉ टेबल की। तो इस तरह मैं किसी भी कमांड को इस एरिया में ऐड या डिलीट करवा सकता हूँ। और यहाँ हम वो कमांड रखेंगे जिसे हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ताकि हम उस कमांड को क्विकली एक्सेस कर सकें। ये एरिया टाइटल बार कहलाता है।
क्योंकि इसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल नज़र आ रहा होता है। इस वक्त हमारे इस एप्लीकेशन का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट 1 है। जब हम अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो ये टाइटल चेंज हो जाएगा और ये टाइटल वही होगा जो हम अपने फाइल का नाम रखेंगे। ये मिनिमाइज बटन कहलाता है। इससे हम अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद ये एप्लीकेशन टास्क बार में आ जाएगी और मैं किसी और फाइल पर काम कर सकता हूँ। और अगर मैं दोबारा इस फाइल पे काम करना चाहता हूँ तो मैं टास्क बार से इस एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा और ये एप्लीकेशन मेरे सामने आ जाएगी। ये बटन मैक्सिमाइज कहलाता है। इससे हम अपनी एप्लीकेशन का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये क्लोज बटन है। इसके अलावा हमारे पास ये एरिया जो हाईलाइट हुआ है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये रिबन कहलाता है। और इस रिबन में हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है टैब। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। और हर टैब की जो लुक है, जो उसमें कमांड्स हैं वो डिफरेंट है। होम टैब में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है और ये एडिटिंग ग्रुप है। इसी तरह इंसर्ट में अगर हम जाएं तो ये पेजेस का ग्रुप है, ये टेबल्स का ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, ये लिंक्स का ग्रुप है, ये हेडर एंड फुटर का ग्रुप है, टेक्स्ट का ग्रुप है और ये सिंबल्स का ग्रुप है। हर टैब में आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे। हर ग्रुप में हमारे पास इंडिविजुअल कमांड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम फ़ॉन्ट ग्रुप की बात करते हैं। इसमें हमारे पास पहली जो कमांड है वो फ़ॉन्ट है। इसी तरीके से ये एक अलग कमांड है जहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये अलग कमांड है, ये अलग कमांड है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ग्रुप में मल्टीपल कमांड्स होती हैं जो कि मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। और ये फ़ॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कमांड होंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी कमांड होंगी आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसी तरह स्टाइल्स की कमांड जो होंगी वो हमें यहाँ मिल जाएंगी और एडिटिंग ग्रुप की जो कमांड होंगी वो हमें यहाँ मिलेंगी। आप इस रिबन को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मिनिमाइज़ द रिबन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिबन जो है मिनिमाइज़ हो चुका है और आपको नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही आप किसी टैब पे क्लिक करेंगे तो रिबन आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह इंसर्ट का है, ये रिबन सामने आ जाएगा। जब आप वर्किंग एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो रिबन डिसअपेयर हो जाएगा। इसी तरह से इसका शॉर्टकट भी है। आप शॉर्टकट की मदद से भी रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं और वो शॉर्टकट है कंट्रोल F1। कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने F1 का बटन प्रेस करना है तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप दोबारा कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो वो रिबन आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो आप दो तरीक़ों से अपने रिबन को डिसअपेयर कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ से जाकर इसे मिनिमाइज करें और दूसरा है शॉर्टकट यूज़ करें। ये एरिया हमारे पास रूलर कहलाता है जो कि बिल्कुल स्केल की तरह है। यहाँ से हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये एरिया हमारे पास स्क्रॉल बार कहलाता है और इसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये एरिया हमारे पास स्टेटस बार कहलाता है। यहाँ से हम अपने पेज का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इसमें सिर्फ एक ही पेज है जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है और इस पेज में हमने फ़िलहाल एक ही वर्ड लिखा है और ये वर्ड भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त राइटिंग में वो इंग्लिश है। अगर मैं कुछ और वर्ड डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही साइंस ही डालता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैं पेज 2 पर आ गया हूँ। जैसे ही पेज 2 पर आया यहाँ स्टेटस चेंज हो गया, पेज 2 ऑफ 2, यानी मैं पेज 2 पे वर्किंग कर रहा हूँ और मेरे पास टोटल पेज 2 है। जैसे ही मैं पेज 1 में जाऊंगा कुछ वर्किंग करूंगा तो यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है मैं करंटली पेज 1 पर हूँ, यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास टोटल पेजेस हैं वो 2 हैं और इस वक्त मैं 37 वर्ड्स लिख चुका हूँ। आपको डॉक्यूमेंट किस तरह नज़र आ रहा है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। ये हमारे पास फुल स्क्रीन है। जब हमने जो ह्यूज डॉक्यूमेंट को रीड करना हो तो हम इस मोड को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से हम इजीली रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट लेआउट हमारे पास वेब लेआउट है जिसमें हमें जो स्क्रीन नज़र आएगी वो इसी तरह नज़र आएगी जिस तरह आपने कोई वेबसाइट खोली हो वहाँ से रीडिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास आउटलाइन लेआउट है। आउटलाइन लेआउट हर सेंटेंस को आउटलाइन की शेप में ले आती है। और ये लास्ट लेआउट हमारे पास ड्राफ्ट लेआउट होता है। इसमें हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि प्रिंट करने के बाद हमारा पेज किस तरह नज़र आएगा।
तो इसीलिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी डॉक्यूमेंट बना रहे हों एम एस वर्ड में तो आप अपना लेआउट प्रिंट लेआउट रखें, ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि प्रिंट होने के बाद आपका पेज आपको किस तरह नज़र आएगा। क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा ये हो जाता है कि लेफ़्ट से आपका पेज कितना एम्प्टी होगा, टॉप से कितना होगा, राइट से कितना होगा और बॉटम से पेज कितना एम्प्टी होगा। तो ये था हमारे पास एम एस वर्ड का लेआउट। एम एस वर्ड से रिलेटेड और चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the notifications of newly uploaded videos. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.